السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر۔ مسجد کو مندر بتانے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نشر پسندوں اور فرقہ پرست عناصر کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بارے میں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے بارے میں بھی بکواس کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ ایک مندر کو توڑ کر انہوں نے بنگلورو میں اپنا محل بنوایا تھا۔ خبر در خبر میں بتائیں گے پوری تفصیل۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ ترکی اور اسرائیل میں کیوں قربت بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے فلسطین کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان۔ لیکن پہلے جلدی سے جان لیتے ہیں آج کی یہ 5 اہم نیوز۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اپنے ایک اہم فیصلے میں جسم فروشی کو بھی ایک پیشہ اور کام تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسم فروشی کرنے والے بھی قانون کے تحت وقار اور برابر تحفظ کے حقدار ہیں۔ کورٹ نے ہدایت جاری کی ہے کہ جو بھی بالغ افراد اس پیشے سے وابستہ ہیں ان کے کام میں پولیس کو نہ تو کسی بیجا مداخلت کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی مجرمانہ کارروائی ہونی چاہیے۔ صاف لفظوں میں یہ کہ عورت کی مرضی اور رضامندی سے ریپ اب کرائم اور جرم نہیں مانا جائے گا، صرف گینگ ریپ ہی جرم مانا جائے گا۔ کرناٹک میں حجاب کے خلاف ایک مرتبہ پھر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ بنگلورو کی ہمپکتا علاقے کی یونیورسٹی میں شدت پسند طلبہ نے اس وقت احتجاج شروع کر دیا جب مسلم لڑکیاں حجاب پہن کر وہاں داخل ہوئی۔ شرپسندوں نے مطالبہ کیا کہ لڑکیوں کو حجاب پہن کر یہاں آنے سے روکا جائے یا پھر ہمیں بھی بھگوا رنگ کا رومال اوڑھ کر آنے کی اجازت دی جائے۔ کانگریس نے مودی حکومت کے 8 سال پورے ہونے پر اسے ناکام قرار دیتے ہوئے جمعرات کے روز 8 سال 8 چھل بی جے پی وفل کے نام سے کتابچہ جاری کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بی جے پی کے 8 سال میں 8 فریب اور دھوکہ دیا گیا اور بی جے پی حکومت کام کرنے میں ایک طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ افغانستان کی راجدھانی کابل اور شمالی شہر مزار شریف میں 4 دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کی شام کابل کے کولالا پیشہ علاقے میں اس وقت دھماکہ ہوا جب مسلمان حضرت زکریا مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ مسلمانوں اور مسجدوں کے خلاف بی جے پی کی زہر افشانی لگاتار جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہر مسجد کی کھدائی کی جائے، شیولنگ ملے تو ہمارے حوالے کرو۔ یہ بھی الزام عائد کیا کہ تلنگانہ میں کئی مندروں کو توڑا گیا ہے اور ان پر مسجدیں تعمیر کی گئی ہے۔ ہماری سرکار آئے گی تو یہاں رام راجیہ قائم ہوگا۔ اور اب بات آج کی اہم خبروں کی۔ بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے بعد گیان واپی کو مندر بنانے کا معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے۔ متھرا کی شاہد گاہ پر بھی مندر توڑ کر مسجد بنانے کا الزام ہے۔ تاج محل، بھوپال کی تاریخی جامع مسجد تاج المساجد، دلی کی جامع مسجد سمیت 10 مسجدوں کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد شرپسندوں اور بھگوا شدت پسندوں نے اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بارے میں بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ وہاں پہلے مندر تھا جسے توڑ کر درگاہ بنایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ مہارانا پرتاپ سینا نام کی ایک شدت پسند تنظیم نے کیا ہے۔ تنظیم نے راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت اور مرکزی حکومت کو ایک خط لکھ کر اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ مہارانا پرتاپ سینا کے عہدیداروں نے ایک تصویر کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اجمیر درگاہ کی کھڑکیوں پر سواستک کے نشانات ملے ہیں۔ مہارانا پرتاپ سینا کے بانی راج وردھن سنگھ پرمار کا دعویٰ ہے اجمیر کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شیو مندر تھی جسے درگاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ راج وردھن سنگھ پرمار کا دعویٰ ہے کہ درگاہ میں سواستک کا کیا کام ہے، یہ تحقیقات کا موضوع ہے۔ ہم نے مسئلہ اٹھایا ہے، حکومت کو جانچ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ مہارانا پرتاپ سینا نے راجستھان حکومت، گورنر، مرکزی حکومت کو خط لکھا ہے۔ سینا سربراہ پرمار کا کہنا ہے اگر 1 ہفتے میں تحقیقات نہیں ہوئی تو مرکزی وزراء سے ملاقات کریں گے، پھر بھی کوئی حل نہیں نکلا تو بڑا احتجاج کیا جائے گا۔
महाराणा प्रताप सेना के कारकुन 2000 की तादाद में अजमेर जाएंगे और एहतजाज करेंगे। इन लोगों ने अदालत जाने की भी बात की है। हिंदू तंजीमों के इस दावा को बकवास भी नहीं कहा जा सकता है, झूठ भी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि इस तरह की बेसर और पैर की बातों के लिए कोई दूसरा लफ्ज़ ही ईजाद होना चाहिए, क्योंकि अमूमन झूठ और बकवास को सच साबित करने की कोई लॉजिक भी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1226 में हुई थी और तब से उनकी कब्र वहाँ मौजूद है। शुरू में उसकी तामीर हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमान बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ने कराया था। बाद में जलालुद्दीन अकबर ने भी उसकी तामीर में हिस्सा लिया था और तब से वो मज़ार है। तारीख गढ़ने और बकवास करने वालों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में टीपू सुल्तान महल का मसला भी उठा दिया है। कर्नाटक की एक तंजीम हिंदू जनजागृति समिति ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीपू सुल्तान महल मंदिर की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया था। इस संगठन के तर्जमान मोहन गौड़ा ने जुमरात को ज़मीन के सर्वे का भी मुतालबा किया है। इन लोगों को लगता है कि जहाँ भी खुदाई करो वहाँ मूर्ति निकल जाएगी। हालांकि मूर्ति निकलते हुए अभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मूर्ति रखते हुए दुनिया ने ज़रूर देखा है। आपको याद होगा 1949 में आधी रात को इन लोगों ने बाबरी मस्जिद में जाकर मूर्तियां रखी थी और दावा किया था कि राम प्रकट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि मूर्तियां रखी गई थी और ये जुर्म था। अभी जैसे इन लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के फव्वारा को बता दिया कि शिवलिंग है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु में टीपू सुल्तान महल के बारे में, जिसके हवाले से अब दावा किया गया है कि ज़मीन कोटे वेंकटार में स्वामी मंदिर की थी, जिस पर टीपू सुल्तान ने कब्जा कर लिया था। यह भी दावा है कि यहाँ पर वेद पढ़ाए जाते थे। इस बकवास और मनगढ़ंत कहानी को बुनियाद बनाकर हिंदू जनजागृति समिति ने सरकार से मुतालबा किया है कि ज़मीन का सर्वे करके उसके असल मालिक को सौंप दिया जाए। वेंकटार में स्वामी मंदिर को 15वीं सदी में चकदेवराज वडियार ने तामीर किया था, ऐसा दावा है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बीजेपी पहले से नफरत फैलाती रही है और अब एक नया तनाज़ुर पैदा कर दिया गया है। सरकार भी उन्हीं लोगों की है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने साल 2019 में सेकेंडरी स्कूलों की तारीख की किताब से टीपू सुल्तान के चैप्टर को हटाने की बात की थी, जिस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। कर्नाटक में इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद जुलाई में ही बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश यानी जयंती की तकरीबात को ख़त्म कर दिया था। ये एक सालाना सरकारी प्रोग्राम था जो सदार रमैया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत के दौरान शुरू हुआ था। बीजेपी साल 2015 से इसकी मुखालफत कर रही थी और सरकार आते ही उसने इसको बंद कर दिया। टीपू सुल्तान को बीजेपी और RSS जितना चाहे बदनाम करे, उससे नफरत करे, लेकिन उनकी कुर्बानी और बहादुरी को तारीख कभी भी नहीं बदल सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घुटना टेकने पर मजबूर किया था, जदीद तरीन असलहा तैयार करके अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के कब्ज़ा से बचाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें की थी और अंग्रेज़ों का भी एतराफ़ था कि यही हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मई 1799 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की शहादत हो गई थी। उनके सीने पर चढ़कर अंग्रेज़ी ऑफिसर ने कहा था, आज से हिंदुस्तान हमारा है। यही वजह है कि बहुत से मौरख़ीन टीपू सुल्तान को एक सेकुलर और जदीद हुक्मरान के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ताकत को चैलेंज किया था। तारीख में ऐसी कई मिसालें भी मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि टीपू सुल्तान एक सेकुलर हुक्मरान थे और उन्होंने हिंदुओं की बहुत मदद की थी। मंदिरों की तज़ीन का काम उन्होंने किया था। उनके ज़्यादातर जो हुक्काम थे वो हिंदू और ब्राह्मण थे। टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से एक और भी बहुत अहम बात है जिसको छुपा दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के मठ में एक मंदिर की उन्होंने तामीर कराई थी। दरअसल 1790 में आसपास की मराठा फौजों ने उस मठ को तामीर करा दिया था। तब मठ के स्वामी सचदेवानंद भारती ने मैसूर के उस वक्त के बादशाह यानी शहीद टीपू सुल्तान से मदद की अपील की थी। दोनों के दरमियान तकरीबन 30 खतूत का तबादला हुआ था। 30 लेटर लिखे गए थे। ये खतूत अभी तक श्रीनगर मठ के अजायब घर में पड़े हुए हैं। टीपू सुल्तान ने स्वामी के ख़त में लिखा था, जिन लोगों ने इस मुक़द्दस मकाम के साथ गुनाह किया है उन्हें जल्द ही उनकी बदअमालियों की सज़ा मिलेगी। मठ की धोखाधड़ी का नतीजा ये होगा कि उनका पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। और फिर टीपू सुल्तान ने मठ की तामीर कराया और हिंदुओं की हर तरह से मदद की, अपने खजाने से सपोर्ट किया था। और अब बात तुर्की और इसराइल में बढ़ते रिश्ते की।
तुर्की और इसराइल के दरमियान क़ुर्बतें लगातार बढ़ती जा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश इन दिनों इजराइल के दौरा पर है। चावुश गुज़िश्ता 15 बरसों के दौरान इजराइल का दौरा करने वाले पहले आला तुर्क ओहदेदार और सियासतदान है। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों से जारी कशीदगी के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, सफ़ारती और इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने की कोशिशों के दरमियान हुई है। दोनों वज़राए ख़ारजा की इस तारीख़ी मुलाक़ात के बाद दोनों मुल्कों ने सफ़ारती, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान भी किया है। दोनों मुल्क इजराइल एयरलाइंस के तुर्की प्रवास के लिए बातचीत को दोबारा शुरू करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। दोनों मुल्कों ने बाहमी मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन की सरगर्मियाँ बहाल करने पर भी इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने चावुश ओलो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा, हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि हमारे ताल्लुकात में कभी उतार चढ़ाव नहीं आए, लेकिन कदीम तारीख़ रखने वाले मुल्कों को ये मालूम होना चाहिए कि बाहमी ताल्लुकात में एक बाब बंद और एक नया बाब कैसे खोला जाता है, और आज हम यही कर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चावुश ओलो का कहना था, तुर्की इजराइल के लिए चोटी का तिजारती पार्टनर, नीज़ इजरायली सयाहों के लिए मकबूल मकाम है। एक मुस्बत एजेंडे पर काम करने से हमारे बाहमी इख्तलाफ को ज़्यादा तामीरी अंदाज में दूर करने में मदद मिलेगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश ओलो ने यह भी उम्मीद ज़ाहिर की कि इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी से फ़लस्तीनियों को भी मदद मिलेगी। तुर्की मुज़ाकरात में मावनत के लिए तैयार है। हम यरूशलेम और मस्जिद अक़सा के हवाले से फ़िक्रमंद हैं और हमें यकीन है हमारे ताल्लुकात को मामूल पर लाने से फ़लस्तीन के दरीना तनाज़ो के पुरअमन हल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तुर्की फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी रखने की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। यरूशलेम के दौरा पर जाने से कबल चावुश ओलो ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर फ़लस्तीनी ओहदेदारों से रमला में मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात के दौरान बाहमी ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत भी किए। चावुश ओलो ने बताया कि उन्होंने अपने इजरायली हम मनसब के साथ इजराइल फ़लस्तीन तसादुम के मौजू पर भी बातचीत की और तुर्की के उस मौक़िफ़ का इआदा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के पैमानों के मुताबिक 2 रियासती हल ही देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। उन्होंने होलोकास्ट म्यूज़ियम का दौरा किया, वो यरूशलेम में मस्जिद अक़सा गए और उसके पुराने इलाक़ों का भी दौरा किया। तुर्की और इसराइल के दरमियान पिछले 10 सालों से रिश्ते ख़राब थे, जिसको हालिया महीनों में तुर्की और इसराइल दोनों ने बेहतर बनाने की सिमत में कोशिशें की है। मार्च में इसराइली सदर आइज़क बहज़रोक की अन्क़रा में सदर एर्दोआन के साथ मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात में एक नए दौर का ऐलान किया था। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद तुर्की दूसरा मुल्क है जिससे रिश्ते बहाल होने जा रहे हैं। हालांकि तुर्की से पुराने रिश्ते इसराइल के, लेकिन तैयब एर्दोगान की सरकार आने के बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। अब दोबारा एर्दोगान इसराइल के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं। खबर खबर में आज इतना ही। हमारी न्यूज़ और हमारी तफसीलाती खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।